रियल न्यूज़ पंजाबी। ਰੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਨਿਲ ਸਹਿਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਝਲਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ शिवरात्रि वाले दिन की। तो बने रहो सारे नाल अंत तक और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बलकीर सिंह मेरा नाम जी, दशमेश नगर का रहने वाला जी। इत्थे हर शिवरात्रि ते बाबे का लंगर लाईदा वा, जो भी बनाया खीर पकौड़े जो सब कुछ बनाईदा वा ते लोगों ने वरताईदा वा जी। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਈਦਾ ਵਾ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ? ਐਰਕਾ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਐਰਕਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸਰ? ਅੱਜ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ। ਖੀਰ ਤੇ ਪਕੌੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਭੰਗ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਗੁਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਗੁਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਕੌੜੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਕੌੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਰੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। वीडियो बन रही है ना, छाड़ दो थोड़ा ऊपर करके छेड़ो, ऊपर करके छेड़ो, ऊपर करके। स्वरूप में शिक्षक होकर के विश्व की सर्वात्मा को पांच विकारों से विश्व में सर्वात्मा को पांच विकारों से छुड़ाने वाले मुक्त कर सच्ची स्वतंत्रता अर्थात संपूर्ण सुख शांति संपन्न आजाद दैवी साम्राज्य की स्थापना करके ही रहेंगे। ये त्योहार जो मनाते हैं कि साडे विच कोई परिवर्तन आउंदा है, जिद्दां टीवी जी पहला सानू दस रहे सी कि साडे नाल केवल ते केवल प्रभु नाम जान,
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਕੇ ਗੀਤਾ ਦੀਦੀ, ਬੀਕੇ ਸ਼ਮਾ ਦੀਦੀ ਔਰ ਬੀਕੇ ਜੋਤੀ ਦੀਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 3 ਜਣੇ ਆ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे सभी भाई बहन, मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश विश्वविद्यालय, जो कि आज से 85 वर्षों से ये चल रहा है और 85 वर्षों से निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के हम सभी बच्चों को सहज राजयोग सिखला रहे हैं, जिस राजयोग से हम परिस्थितियों से, कई समस्याओं से, तनाव से, चिंता से मुक्त हो सकते हैं। और कोई भी समस्या हो, सहज राजयोग से हम बहुत जल्दी ठीक होंगे। और कुछ परमात्मा की दुआएं और कुछ दुआ अगर दोनों काम करें तो हम बहुत जल्दी शरीर के हर एक रोग को ठीक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हमने क्या किया है। व्यर्थ को बहुत रखा है, हमें व्यर्थ को बिल्कुल छुट्टी देनी है। व्यर्थ को समाप्त करके उसकी जगह समर्थ बनना है, क्योंकि व्यर्थ का किचरा हमारी बुद्धि के अंदर है। व्यर्थ के किचरे को समाप्त करके परिस्थितियों और समस्याओं से हम दूर रह सकते हैं। अगर हम आज शिव जयंती के दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं। तन्मूर्ति 85वीं तन्मूर्ति शिव जयंती की आपको हार्दिक बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को निमंत्रण देती हूँ कि आप बाबा के घर में आइए और सहज राज्यों का अभ्यास करिए और चिंता मुक्त बनिए, तनाव मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसमें जाति, धर्म, रंग, भेद का कोई दीवार नहीं है। यहाँ आत्मा को देकर के ज्ञान दिया जाता है। ये 147 कंट्री में ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये कार्य चल रहा है, फ्री ऑफ कास्ट। हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी ये 24 घंटे ये चलता है। और ये इसको चले हुए 1936 में ये संस्था जो है हैदराबाद, पाकिस्तान, सिंध से ये स्टार्ट हुई है ये। और लगभग इसको अभी 85 ईयर्स हो गए हैं, जिसमें कि इस संस्था के जो फाउंडर थे प्रजापिता ब्रह्मा, उनके जाने के उन्होंने इस संस्था को चलाया। उन्होंने अपना तन मन धन लगा करके, उनका डायमंड का बिजनेस था, उन्होंने सारे अपना परिवार संपत्ति सब इस यज्ञ में स्वाहा कर दी। कहते हैं ना, तन मन धन सब स्वाहा करना। तो इसमें कोई मतलब पैसे की बात नहीं है, इसमें मनुष्य से देवता बनाया जाता है। और 80% बीमारियां जो हैं वो
तनाव से होती हैं। लेकिन यहाँ मेडिटेशन जो सिखाया जाता है कि हम परमात्मा को याद कैसे करें, अपने को आत्मा समझ करके भगवान को याद करना है। संसार में तीर्थ यात्राएं जप तप करते हैं कि हमारे दुख रोग खत्म हो जाएं, पर भगवान का ने एक वादा किया है कि जब जब धर्म की गलानी होती है तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे समय पर मैं आता हूँ जब हर आत्मा जो है वो पापाचार भ्रष्टाचार से ग्रसित अर्थात चरम सीमा पर जब पहुंच जाती है तो भगवान अपने वादे अनुसार जो है वो वृद्ध तन का आधार लेकर के वो अभी ये नॉलेज दे रहे हैं, जिससे कि अभी इसके बाद लेटेस्ट जो है वो नई स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। ये दुख शांति के जो बादल मंडरा रहे हैं ये सारे ख़त्म हो जाने हैं इस मेडिटेशन और योग के द्वारा। भगवान जो है वो सब रूहों का बाप है, वो सब रूहों का बाप है। पर कैसे बाप है? परमात्मा का अपना शरीर नहीं है, परमात्मा का अपना शरीर नहीं है। वो जैसे कि आज बहुत बड़ा दिन है, शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन शिव जयंती का दिन है। रात्रि ये 12 घंटे की नहीं है। दुनिया वाले समझते हैं कि 12 घंटे की रात्रि है, पर 12 घंटे की रात्रि नहीं है। जब पापाचार भ्रष्टाचार अति चरम सीमा में हो जाता है, उस रात को दिन बनाने के लिए, रोशन करने के लिए एक ये कार्य जो है ये परमात्मा का कार्य चल रहा है, लेकिन ये गुप्त रूप में चल रहा है। तो ये जो भी आत्मा आती है, तो जैसे कोई स्कूल कॉलेज बने हुए हैं, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वकील बना सकते हैं, पर ग्रंथ साहब में लिखा है मनुष्य से देवता की ये कर्त न लगे बाहर है। वो अभी है, लेकिन मनुष्य से देवता मनुष्य नहीं बना सकता। वो ये परमात्मा का काम है। परमात्मा का काम बड़ा फास्ट गति से चल रहा है। ये अभी ये संसार का जो कार्य है परमात्मा का, ये मतलब बिल्कुल समझो लास्ट मोमेंट पर है। तो हम तो सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे, नम्र निवेदन हमारा यही है, सब आएँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय भंडारी गेट में इसकी ब्रांच है, आएँ, अपना भाग्य बनाएं और पुण्य के बागी बने और जन्म जन्म के जो दुख दर्द है उनसे अपने निरोग हो जाए। ओम शांति। मैं इस संस्था के नाल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाल पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पर समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हूँ। और यहाँ की सबसे बड़ी प्योरिटी पीस और जो है हमें बहुत अच्छी लगती है। और माताओं बहनों को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, जब तक जो कि हमने सुना है आज तक सुनते रहे कि नारी नरक का द्वार है, नारी जो है सपनी है, अलग अलग टाइटल ऐसे ऐसे बहुत दिए गए। तो यहाँ पर बाबा ने आकर, स्वयं परमपिता परमात्मा ने आकर हम बच्चों को बताया है कि बच्चे नहीं, नारी तो स्वर्ग का द्वार है। और ये संस्था जो है यहाँ पर बी के नाम ही इसका है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और यहाँ पर सबको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि सब हम जीवन इस समाज में रहकर कैसे जिएं। ओम शांति। मैं नानक किशोर वर्मा इस संस्था के नाल 1964 साल तो जुड़िया दा वां ते ये संस्था जिहड़ी है ये किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं की गई। ये निरंकार परमपिता परमात्मा शिव जिहड़ा साडी सर्व आत्मा के पिता उन्होंने स्वयं आके ये संस्था चालू की है। परमपिता परमात्मा शिव 1936 साल के सिंध हैदराबाद जिहड़ा इस वेले पाकिस्तान च उस वेले एक सधारण तन दे जिन्होंने नाम दादा लेखराज सी उन्होंने तन प्रवेश किया तो उन्होंने आके अपना परिचय खुद ही दिता, क्योंकि जिदा गीता च लिखा है कि मैं अपना परिचय आप खुद ही देना कि ईश्वर का परिचय होर कोई नहीं दे सकता। जिन्हें भी साधु सन्यासी या धर्म पिता है वो अपना अपना परिचय खुद दे देंगे आ। जेकर ईश्वर का परिचय उन्होंने देना होंदा तो ईश्वर को आने की जरूरत नहीं की पैंदी। जेकर जिदा गीता च लिखा है कि जब जब धर्म की अति गिलानी होती है तब तब मुझे इस सृष्टि पर आना पड़ता है। आकर धर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। जितने भी धर्म पिता है वो तो अपना धर्म स्थापित करते हैं और अपना ही ज्ञान देते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा कहता है मैं कल्प के अंत में जब धर्म की अति गिलानी होती है तब मैं इस सृष्टि पर आकर अपना ज्ञान देकर अपने बच्चों को, क्योंकि ईश्वर के तो हम सब बच्चे हैं, आत्मा रूपी से हम सब बच्चे हैं,
ठीक शरीर से अलग अलग हमारे धर्म हो सकते हैं, हमारे मजहब हो सकते हैं, हमें मान्यता हो सकती है, लेकिन परमात्मा कहता है आप मूल रूप में आप मेरे स्वरूप हो, क्योंकि मैं भी ज्योति स्वरूप हूँ, आप भी ज्योति स्वरूप हो। इसलिए मुझे याद करने के लिए आपको ज्योति स्वरूप में उचित होना पड़ा है, पढ़ के फिर आप उसको याद करोगे। याद कहाँ करना है, क्योंकि सच करने वचन निरंकार, जैसे हम आरती में गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, वो पार ब्रह्म परमेश्वर पर ब्रह्म लोक में रहता है। वहाँ पर आकर, जहाँ पर आकर ये फिर हम आकर ज्ञान देकर हम बच्चों को कल्प के अंत में, जबकि इस सृष्टि का परिवर्तन का समय आता है, आगे वो हमें ये ज्ञान देकर हमें सब आत्माओं को वापस ले जाता है। तो मैं तब से लेकर इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो जितना मैंने जीवन में अनुभव किया है आपको वर्णन नहीं कर सकता कि परमात्मा की तो लीला ही बड़ा। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬੀਕੇ ਗੀਤਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ, ਬੀਕੇ ਸ਼ਮਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਅਨਿਲ ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬਟਾਲਾ।